Morning students, how are you all? I hope you all are fine and safe. Myself Namrata More, I am a computer teacher. Today I am teach you chapter number 3, algorithms and flowchart. As we discussed in our Zoom lecture, a computer is useful tool for solving a great variety of problems. To make a computer do anything, okay, now you have to write a computer program. In a computer program you tell a computer step by step एग्जैक्टली वॉट यू वॉन्ट टू इट टू डू. आपको जो मतलब कंप्यूटर से आउटपुट चाहिए, ओके, उसके लिए आपको क्या करना होता है, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस देनी होती है. द कंप्यूटर दैट एग्जीक्यूट्स द प्रोग्राम फॉलोइंग ईच स्टेप मैकेनिकली टू accomplish the end goal. Now here, Aditi's sister Tanya is in a class 2. Her teacher has given her a set of instructions to switch on the computer. Tanya follows the instruction step by step. Instruction of Tanya. Now we will look which instruction. First, power switch in the wall. Second, power button on the UPS. Press the power button on the CPU, and last one is that press the power button on the monitor. Now as it is in algorithms, okay, this algorithm why we are using, pehle to first of all, suppose we have to in a programming language, okay, we have to use algorithm and flowchart. Now here in computing, a set of instruction is carried out by a computer to arrive at a specific result. A computer program is formed of several sets of instruction or algorithm. An algorithm can be defined as a finite set of stepwise instruction that should be followed to perform specific task like solving a logical or a mathematical problem. An algorithm is a list of instruction for completing some task. Algorithms are like road maps. They how us their way to finish or complete a task. Suppose you know that sometimes you have to suppose मान लो कि इफ़ यू वांट टू ऑन मोबाइल, ओके, मोबाइल में भी अगर आपको फ़ोटो खींचनी हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल आप मोबाइल को ऑन करोगे, देन यू हैव टू फाइंड आउट वेयर इज़ द कैमरा ऑप्शन. कैमरा पे आप क्लिक करोगे, ठीक है, एंड देन आफ्टर क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, वो कैमरे की स्क्रीन आएगी, ठीक है. इट्स वन टाइप ऑफ अ स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन, ओके. नाउ नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, लेट अस लुक एट द एल्गोरिदम फॉर क्रॉसिंग द रोड at the zebra crossing. Stand on the pavement next to the zebra crossing. Look both right and left. If there is any traffic coming, wait for it to pass. Once there is no traffic on the road, cross the road at the zebra crossing. मतलब जब अभी हम लोग रोड क्रॉस करते हैं तो हम लोग पहले क्या करते हैं, पहले राइट लेफ्ट साइड देखते हैं कि भाई कोई व्हीकल तो नहीं आ रहा है ना. अगर आ रहा है कोई व्हीकल तो पहले फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ दैट कि उसको पास होने देते हैं. व्हेन ही इट पास, देन आफ्टर वी विल क्रॉस द रोड, ओके. नाउ नेक्स्ट, नाउ हाउ टू राइटिंग द एल्गोरिदम, कैसे लिखते हैं. It is written in an English like a language. It should have an input. You can use the syntax of the language if you are taking an example of a programming language. Syntax means sentence. You can include variables. Now variables means जैसे आप लोग मैथ्स में पढ़ते हो ना, ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी, so ए बी सी is whatever thing is that they are variables, okay. So variables also used in this programming language. Now next page is 34. Now here you can define a mathematical expression to calculate a result. You can refer to each step by a
unique step number. It should perform some action or produce an output. Now उसकी कैरेक्टरिस्टिक हम लोग देखते हैं. कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इनपुट, जनरली, प्रिसिशंस, यूनिकनेस, फाइनाइटनेस एंड आउटपुट. दीज ऑल आर कैरेक्टरिस्टिक. नाउ फ्लो चार्ट. अल्गोरिदम हो गया. अभी उसके बाद क्या है? फ्लो चार्ट. अ फ्लो चार्ट इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दैट शोज द प्रोसेस टू बी परफॉर्म टू सॉल्व अ प्रॉब्लम. ओके, देन टू कंप्लीट अ टास्क. इट शोज द स्टेप ऑफ द प्रोसेस इन द प्रॉपर सीक्वेंस. मतलब फ्लो चार्ट में क्या होता है? 1 by 1 जैसे प्रोसेस दिखा है, सीक्वेंस से दिखाते हैं वैसे. नाउ क्या है? दस अ फ्लो चार्ट diagrammatic representation of a program. It is called a flowchart. Since it charts the flow of a program, flowchart plays a very important role in a computer programming. It helps in understanding at designing the logic of the program. Okay, now अभी फ्लो चार्ट के सिम्बॉल्स देखते हैं. विच वन इज अ फ्लो चार्ट? देखो, in the flowchart technique each step is represented by a drawing a specific geometrical symbol. कौन से वो देखते हैं. फर्स्ट दिस, ये जो आपको दिखाई देखिए ओवल एंड ओवल रिप्रेजेंट द स्टार्टिंग एंड एंडिंग ऑफ अ फ्लो चार्ट. ये सिंबल जो है वो स्टार्ट एंड स्टॉप के लिए है. ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये इनपुट एंड आउटपुट के लिए है. दिस वन फॉर प्रोसेस, रेक्टेंगुलर बॉक्स, डायमंड बॉक्स फॉर डिसीजन. एंड ये क्या है? फ्लो लाइन्स. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लो लाइन्स? Flow lines connect two symbols pointing towards the direction of a flow information. मतलब इसके बाद अभी कौन सा स्टेज है वो इंडिकेट करना है, उसके लिए कौन से यूज़ होता है? फ्लो लाइन यूज़ होती है. नाउ नेक्स्ट, फीचर ऑफ अ फ्लो चार्ट. अभी यहाँ पे आपको मैं बेसिक बता देती हूँ कि फ्लो चार्ट का फीचर क्या है. वो कि देखो, फ्लो चार्ट शुड हैव ओनली वन स्टार्ट एंड वन स्टॉप symbol. Okay, arrowheads are used to indicate the flow of information or a sequence of steps. मतलब you can see this arrow is indicate that the flow of information, मतलब वो सीक्वेंस दिखाता है. द एरो लाइन शुड नॉट क्रॉस द ईच अदर. जैसे सपोज ये देखो, ये मैंने एक क्रॉस यहाँ से किया है तो इट इज़ अ रॉन्ग, नेवर क्रॉस. ओके, देन व्हेन अ फ्लो चार्ट ऑक्यूपाइज मोर देन वन पेज. सपोज ये पूरे फ्लो चार्ट आपने यहाँ पे लिखा है और उसका आधा पोर्शन कहीं और दूसरे पेज पे है, तो यू हैव टू राइट ऑफ पेज कनेक्टर्स. ओके, 2 कनेक्टर्स है, एक ऑफ पेज कनेक्टर एंड सेकेंड इज ऑन पेज कनेक्टर. ऑफ पेज कनेक्टर कब यूज़ होता है? वेन एवर फ्लो चार्ट ऑक्यूपाइज मोर देन वन पेज, द ऑफ पेज कनेक्टर्स आर यूज्ड फॉर ज्वाइनिंग द parts on the different pages. The parts of a flow chart contained within one page are joined by the on page connector. The different parts must be referenced by the same numbers, say 1 2 3 etc., or by the same alphabet character A B C. Where क्या बोला है? numbers are presented by on page connectors and off page connectors by letter. मतलब जो A B C होते हैं वो ऑफ पेज कनेक्टर्स में लिखते हैं एंड ऑन पेज जो होते हैं 1 2 3 किस में होते हैं? नंबर्स किस में होते हैं? ऑन पेज कनेक्टर में होते हैं. ओके, नाउ वी विल लुक द वन एग्जाम्पल हियर. Now let us look at a few examples to understand a flowchart better. Write an algorithm. हमें पहले क्या बोला है कि algorithm लिखना है. Write an algorithm and draw a flowchart for calculating the cost of a dozen oranges. If the cost of one oranges is 10 rupees. Let us draw a flow chart for calculating the cost of a dozen orange if the cost of one orange is ₹2. फर्स्ट क्या है कि अल्गोरिदम लिखना है जिसमें डजन मीन्स कितने ऑरेंज आएंगे? 12. ओके, 12 ऑरेंजेस है. यहाँ पे 1 ऑरेंज की प्राइस क्या दी है? 10. तो 10 × 12 करेंगे. ओके, अगर 12 × 10 करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 122. नाउ लुक, यहाँ पे दिखा है अल्गोरिदम. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट स्टार्ट,
देन लिखना है रीड द इनपुट वैल्यूज़ फॉर नंबर्स ऑफ ऑरेंजेस, मतलब कौन सी वैल्यू आएगी 12, एंड द कॉस्ट ऑफ वन ऑरेंज मतलब 10, एंड स्टोर दैम इन अ वेरिएबल्स। ओके, रीड कर रहा है कौन से वेरिएबल लिए है ए एंड बी। इट मीन्स क्या आएगा a इज इक्वल टू 12 एंड b इज इक्वल टू क्या आएगा 10। मल्टीप्लाई a एंड b एंड स्टोर द रिजल्ट इनटू अ वेरिएबल नेम c। यहाँ पे देखो कौन से वेरिएबल लिए है a b c, जहाँ में a एंड b में उन लोगों ने इनपुट वैल्यू डाली है और ये दोनों का जो रिजल्ट होगा वो कौन से वेरिएबल में स्टोर होगा c में स्टोर होगा। अभी क्या बोला है मल्टीप्लाई a एंड b एंड स्टोर द रिजल्ट इनटू वेरिएबल c। तो यहाँ पे मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगी तो a की वैल्यू कितनी है 12 एंड b की वैल्यू कितनी है 10, तो 12 इंटू 10 करोगे तो कितना आएगा 120, तो c की वैल्यू कितनी आएगी 120। ओके, सो प्रिंट द रिजल्ट स्टोर इन द वेरिएबल c, मतलब जो वेरिएबल c के अंदर जो है रिजल्ट है जो भी अमाउंट है ओके वो क्या करेंगे प्रिंट करेंगे एंड देन यू हैव टू राइट स्टॉप। गॉट इट। ये रहा अल्गोरिथम का एग्जाम्पल। नाउ वी विल लुक द फ्लो चार्ट एज इट इज़। ये कौन सा पॉइंट है स्टार्ट, ये दोनों जो पॉइंट है वो क्या है प्रोसेस, ये क्या है आउटपुट बॉक्स एंड दिस वन इज एंड पॉइंट। यहाँ पे क्या करना है स्टार्ट, क्या बोला है नंबर ऑफ ऑरेंजेस कितने हैं 10, कॉस्ट ऑफ वन ऑरेंजेस इज इक्वल टू 2। अभी क्या करना है मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ऑरेंजेस बाय द कॉस्ट ऑफ ऑरेंज 1, तो कितने हुए 10 इंटू 2 कितने हुए 20। सो डिस्प्ले द आंसर, मतलब आंसर क्या आएगा 20। मतलब इस तरह से फ्लो चार्ट्स आपको बनाने हैं। ओके, थैंक यू।